अरे कैमरे में आ रहा है सब सेंटर देके बोलो Hello. Yes, hello, hello. Good to see you after 1 year, I think, no? And Long you time. have Ruchi Music Award. So how are you excited today? And what do you say about Yes, I'm very excited because after 1 year, I'm attending one big event, um, Mirchi Awards, and I'm very excited because it's about music, and I love music. It's part of my life. So I'm gonna meet so many talented people from the industry, and it's gonna be a beautiful evening, I think. What are you expecting tonight? A lot of good music and to see many of my friends, many of the people that I work with, and probably many of the people that I'm going to work with. you know Yes. last year हमने आपके ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो देखा लास्ट ईयर म्यूजिक वीडियो देखा तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टेशन कि अब 2021 स्टार्ट हो गया है तो और क्या कुछ हमें आपके म्यूजिक वीडियो सॉन्ग हमें देखने को मिलेंगे I feel this 2020, which kept us inside a house, was in fact a very good year for the music because all the artists, all the singers and composers started creating much and much more, and they had more time to introspect and to find the resources even deeper. And I think many good songs have come out in this 2020. This year, I feel people will be even more creative and will come with much more beautiful and interesting music videos and songs as well. And today no, I'm not gonna perform today. Maybe next year, who knows? Um, I love all kind of music because I feel every artist who composes, who writes music needs appreciation, and it's an effort and it's a way of expressing. So I feel we should all respect everyone who composes music, and of course it's a matter of taste. And I love, of course, love songs much more. They are like more closer to my heart. But if we go for parties, for sure we'll want some dynamic and full of energy songs as well. So it depends on the mood, depends on the occasion. But music is music, and I think it's beautiful. No matter genre, it's music. What is the status of your upcoming film, Radha Ki Umri Mein Aaya? Actually, we are just planning it because this year is gonna happen, and yeah, we took a break, but in between we shot, me and Prem Soni, we shot for another movie, which is gonna be released this year. I don't know exactly the date, but very soon, and it's a very beautiful movie with a good, strong message, and I really enjoyed it. And you are also singer. Any singers coming from you? Yes, these 2 years I sang so many songs, but they are not released, and because of this pandemic, somehow the songs which were in the movies got stuck there, But there will be at least 4 songs in movies, and there will be some other singers as well that I recorded, and some of them I have to record. Would you like to sing 2 lines of any of your songs and your favorite? Okay. Which song? Will you tell me which one you like? your favorite If you know any of them? Your favorite? My favorite, because I just spoke to Vishal Mishra right now. I asked him if he comes for the event. I'm gonna sing one of his songs, which is very dear to me, and I was part of the creation of the song as well. So that's Selfish. एक बार बेबे selfish होके अपने लिए जियो ना
एक बार बेबे selfish होके अपने लिए जियो ना. That's a good advice for everyone, I think. Take care. Bye. होल्ड में सेकंड तो थोड़ा विजुअल करते हैं, फिर उसके बाद दोनों का फोटो ये भी ले ले भाई, ये ले लो. हार्दिक तू पण लेतो जा ना फोटो. मेरे पास है ना गाली. चेहरे तो ये कौन सा चेहरा है आज का, पहले तो ये था. आज का चेहरा बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही वाइब्रेंट है और बहुत ही गर्मा गर्म है, मिर्चीदार है. और इन सब एडजेक्टिव्स के लिए हमें ना नहीं सुनना जी, क्योंकि आज मूड वही है, वाइब वही है और गाना वही चलेगा. मैडम बहुत एक्साइटेड है आज की शाम. जी. तो आप बताइए इनका चेहरा कितना पसंद है आपको. ओह माय गॉड, इनका चेहरा किसको नहीं पसंद है वो बताइए ना बॉस. और प्लस ये हमारे गाने में जैसी लगी है, आप जाके देखिए यूट्यूब पे. गाने का नाम है ना नहीं सुनना. स्वाइप अप कीजिए और बताइए आपको क्रिस्टल का चेहरा कैसा लगा. ना नहीं सुनना आपसे जानना चाहूँगा जिस तरीके से किस तरीके से आज का एसोसिएशन रहा आपका रेडियो मिर्ची के साथ में. बहुत ही बढ़िया एसोसिएशन था. बहुत सारे स्टार्स अंदर है, बहुत सारे सिंगर्स है जिनके गाने पे हम घर पे डांस करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनको थिरकते हैं. उनको सामने देखने का मौका, उनको लाइव सुनने का मौका मिला. तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल द वाइब इनसाइड. एंड हमने भी जाके हमने थोड़ा सा अपना गाना प्रमोट किया, ना नहीं सुनना. जिगर जो सिंगर है अब डांसर भी है और एक्टर भी है. बिल्कुल बिल्कुल. ओके सो आप लोग ने परफॉर्म किया कि अवार्ड नॉमिनेट किस तरीके से. नहीं, हमने परफॉर्म किया हमारा गाना. हम सोनू जी और भारती जी के साथ हमने हमारा गाना परफॉर्म किया है और ये हमारा इंडिपेंडेंट गाना है, तो हम बहुत एक्साइटेड है. प्लस सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है दैट मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स इज बैक और वी कांट वेट फॉर इट टू कम ऑन एयर. मैम हम आपसे जानना चाहते हैं आपको किस तरह का गाना अच्छा सुनने में अच्छा लगता है. मुझे ना नहीं सुनना जी बहुत बहुत पसंद है. आवर सॉन्ग इज़ अ वेरी हैप्पी मूड. लास्ट पूरा ईयर बहुत डल गया है, तो वी नीडेड अ सॉन्ग दैट वाज लिटिल मोर कलरफुल, वाइब्रेंट एंड हैप्पी. तो अगर आप देखोगे भी तो बहुत ही हैप्पी गाना है और सुनोगे भी विदाउट विजुअल्स तो भी बहुत ही हैप्पी गाना है. तो प्लीज़ सुनिए. हाँ जी, तो मेरा था कि ना नहीं कौन से ऐसी बातें होती जब क्रिस्टल को ना सुनना बिल्कुल पसंद है. इसको आप खाने से रोक दो, बोलेगी मैं ना नहीं सुनना जी. तो वो खाने का बहुत शौक है. वर्कआउट करने बोलो तो मैं ना नहीं सुनना जी. बिल्कुल. आप उनको बोलो कि आप ये कलर मत पहनो, तो पहले बोलेगी नहीं मैं यही पहनूंगी, यही मैं ना नहीं पहनूंगी. सुनूंगी. थोड़ा सा लाइट कलर पहन के आना, देखो मैं क्या पहन के आई. जी. तो सर अगर आप बता सके कि इस चेहरे के साथ में काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा. और ये चेहरा जैसा है वैसा ही रियल लाइफ में ये बहुत ही हैप्पी ऑनेस्ट चेहरा है. तो इस चेहरे के ऊपर कोई नकाब नहीं है, ये बिल्कुल ऑनेस्ट है. प्लीज़ मेरी फिल्म चेहरे भी देखने जाइएगा. बिल्कुल देखेंगे. ऐसे जब लाइव कमेंट्स मिलते हैं तो क्या फील होती है क्रिस्टल जी. मुझे ना समझ नहीं आता कॉम्प्लीमेंट्स कैसे लेते हैं. मैं थोड़ी सी अजीब हो जाती हूँ. बस ये एक ही बार है जो इसने एक नया चेहरा दिखाया है. इसको बिल्कुल आता है. मैं थोड़ा सा पता नहीं ऑकवर्ड हो जाती हूँ कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, बट दे ऑलवेज अप्रिशिएटेड. आई लव व्हेन आई एम बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड. सी यही हो जाता है. बट गाइज थैंक यू फॉर लविंग माई चेहरा एंड प्लीज़ वॉच चेहरे ऑन 9th of April इन द थिएटर्स नियर यू. क्योंकि सर म्यूजिक की शाम में अगर आप लाइन अगर ओह. अपना नाम नहीं सुनना बिल्कुल. कम ऑन लेट्स डू दिस. वो एंड का नाम नहीं सुनना आपको. जी. ओदा नचने दा दिल करे जब तक, नचदी रहे वो नाल मेरे जब तक, तू बजाए जा वे तब तक, तब तक मैं ना नहीं सुनना जी. आ जाओ एंड ट्विस्टेड, आ जाओ जानू, आ जाओ एंड यू नो व्हाट, मैं ना नहीं सुनना जी. क्या बात है. तो जल्दी हम आपको ऐसा सुनेंगे कि गाते हुए सुन गाते बिल्कुल सिंगिंग के बिल्कुल. दुनिया की सुपरस्टार बनने वाली है क्रिस्टल. सर आपके मुंह में घी शक्कर. बिल्कुल. थैंक यू. थैंक यू Thank you. थैंक यू Thank you very गाइस. much.
महेश ये कौन है लेकिन भाई पहले बाइट कर ले। चलो ठीक है। इनको हेलो अभी फोटो दे दीजिए, उसके बाद फिर हम आराम से लव यू। हाय। हाय गनिका, हाउ आर यू? शाम के बारे में बताइए, कैसी थी अंदर आज की शाम? आज की शाम बहुत ही लाजवाब थी, लाजवाब है एक्चुअली। आई वाज जस्ट इनसाइड, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ बाहर, और बहुत अमेजिंग डिफरेंट एक्ट्स हो रहे हैं, एंड मेरा भी एक एक्ट है, एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द होल थिंग। मैं सब बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग टीवी पे जाके आई थिंक जब आएगा तो इतना तो देखो। बता दीजिए कि परफॉर्मेंस थी आपके अंदर कि आप आज नॉमिनेटेड थे? नहीं नॉमिनेटेड नहीं, आज परफॉर्मेंस है, एंड सब जो लोग नॉमिनेटेड हैं उनके लिए ताली बजाने के लिए आए हैं। ओके। पर्सनली अगर आपकी बात की जाए तो एज एन आर्टिस्ट आपकी नज़र में डेफिनेशन क्या है एक अवार्ड का? आई थिंक बहुत सी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब एक अवार्ड मिलता है तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें आगे भी इतनी ही मेहनत करनी है, उससे ज़्यादा मेहनत करनी है, एंड एक जिसे कहते हैं एक अटैचमेंट हो जाता है एक चीज़ से। सो आई थिंक अवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज एक इंसान जो बहुत, एक आर्टिस्ट जो बहुत, एक सिंगर ही नहीं, एक म्यूजिशियन, एक फोटोग्राफर, एक मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं दुनिया में, उनके लिए एक दे लुक फॉरवर्ड टू सम अचीवमेंट की एंड इसी के साथ में आपने इंस्टाग्राम पे कल कुछ शेयर भी किया था एंड आपने बोला था समथिंग इज कमिंग वेरी सून, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली समथिंग नहीं, बहुत सारे अमेजिंग गाने निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट गाना नेक्स्ट वीक निकल रहा है, एंड आई थिंक उसके बाद हर महीने कुछ ना कुछ चल रहा है। उससे मालूम पड़ता है कि कुछ नया आने वाला है उसके बारे में एक्चुअली बहुत नया ही नहीं आने वाला, एक नया स्टाइल भी आने वाला है, बिकॉज आज तक मुझे एक सेट जॉनरा के गाने मिलते थे। अब विद गॉड्स ग्रेस बहुत से जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मुझे चांस दी है कुछ अलग से गाने गायकी में। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि दुनिया मेरी आवाज़ उस तरीके से भी सुनेगी। इसी के साथ में आजकल जिस तरीके के भी सॉन्ग्स आ रहे हैं, जिस तरीके से आपने अभी रिसेंटली भी शेयर भी करे हैं, पारी हो रही है एंड वो एक और जो मतलब हाँ जी। आज में जो बनाए हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं आप इस तरीके के टैलेंट को? आई थिंक इट्स अमेजिंग। कुछ जो चीज़ आपको छू जाए वो टैलेंट है। ज़रूरी नहीं है कि गाना ही टैलेंट है, बोलना टैलेंट है, बुलवाना टैलेंट है, उसको मिक्स करना टैलेंट है। सो उसको सामने पेश करना टैलेंट है। मैम आपने एक वंडरफुल रिंग्स पहनी है, तो उसके बारे में ये रिंग के बारे में ये मैं वो हमेशा पहनती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ एक गिफ्ट है। सो इट रिमाइंड्स मी। सो ये मैं ऑलमोस्ट हर समय पहनती हूँ। ब्लैक एक्चुअली हम ज़्यादातर ब्लैक के अंदर ग्रीन का कॉम्बिनेशन, आप तो इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? सो एक्चुअली आई थिंक जब आप मुझे लगता है कि अगर आप एक कलर पहने हैं तो उसमें ब्लॉक कलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ब्लैक शूज़ पहनती तो सेम हो जाता। आई थिंक ब्राइट ग्रीन से एक एज आ गई, एक कलर आ गया, एंड आई एम एन आर्टिस्ट। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहीं ना कुछ अलग So neon डाल is दी। your favorite or black is your favorite? एक्चुअली नियॉन इज़ माई थोड़ा फेवरेट। माइक के पास एक्चुअली नियॉन इज़ माई फेवरेट। मैं ब्लैक तो बहुत पहनती हूँ बट कलर्स भी मुझे बहुत पसंद है। एंड नाउ कनिका जी, सबसे पहले तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू। तो आप ये जानना चाहेंगे अभी की पैंडेमिक है, लोग थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं, जी। तो कितनी सावधानी भी कितनी रखती है? कोविड का भी टाइम अभी थोड़ा सा फिर से थोड़ा बढ़ गया है। वेल एक्चुअली आई थिंक ये एक ऐसा वायरस है जो
हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा, तो हमें ऑब्वियसली अगर वैक्सीन लेंगे तो एक हाई परसेंटेज है कि हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होएगी। एंड बट ऑब्वियसली मास्क पहनना एक नई आदत सी हो गई है। मुझे लगता है दैट अब मास्क के बिना जब पैंडेमिक नहीं भी हो तो भी मुझे मास्क पहनना बस बहुत पसंद है, बिकॉज एक आप it's very clean and it's much better to be safe than sorry. So I think precautions बिल्कुल लेने चाहिए। Of course हम सबको अपने काम पे जाना बहुत ज़रूरी है, जो हम सब आज अपने अपने कामों पे आए हैं, बट प्रिकॉशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। एंड कनिका, इसी के साथ जिस तरीके से आपने बताया कि आप भी कोविड के दौर से गुजर जी, चुकी हैं, of course। तो क्या कहना चाहेंगी जो मतलब जो दर्शक हैं उनसे कि मतलब उनको किस तरीके की मुझे लगता है कि उसको एक इतनी एक टाबू की तरह या एक इतना डर नहीं फैलाना चाहिए किसी को। एक वायरस है और हर इंसान को डिफरेंट तरीके से छूता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी हमें पिछले साल ने ये सिखाया कि हमें अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को, अपनी ब्रीदिंग को बहुत प्रॉपर्ली हमें रखना है, हमें अपने आप को संभाल के रखना है और स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हमें ये वायरस छुएगा नहीं। आज की शाम अगर आप कोई ऐसा गाना जो आपके फैंस के लिए जो आपका फेवरेट हो, अगर आपको सुना सकें जो हमेशा ऑल टाइम आपका फेवरेट होता है। वेल मैंने अपना एक जो गाना अभी निकाला है जुगनी, जो मुझे लगता है कि मेरे पूरे साल को की समरी एक साथ उस गाने में है। जुगनी थार काई विच थार छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल। एंड इस गाने का मतलब है कि अंत में आपको इट इज़ बिटवीन यू एंड गॉड, आपके और भगवान के बीच में ही है सब कुछ। सो आई सिंग दैट फॉर यू। जुगनी तार खाई विच थाल छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल, रखी साबत सिद्ध दा अमहाल वो पीर मेरे आ। जुगनी जी ए वे अल्लाह वालियां दी, जुगनी जी ए भी नबी पीर दी, जुगनी ए वे मौला अली वाली, जुगनी जी ए भी नबी पीर दी, जुगनी जी। थैंक यू। ऐसे ही कनिका जी, ऐसे ही तो हम आपके सारे फैंस चाहते हैं कि बैक टू बैक आप ऐसे ढेरों सारे म्यूजिक एब्सोल्युटली प्लीज़। तो थोड़ा जल्दी अब नेक्स्ट वीक मेरा नया गाना आ रहा है, उसके बाद अगले महीने फिर नया गाना आ रहा है। सो अब आपने जो कहा है वो मैं ज़रूर सुनूंगी। एंड प्लीज़ सपोर्टिंग द म्यूज़िक। थैंक यू। थैंक यू कनिका। हाँ कनिका